Last time we have done sine of a plus b with the sine a cos b plus cos a sin b, and sine of a minus b होगा sin a cos b minus cos a sin b. Then cos of a plus b, you have cos a cos b minus sin a sin b. Cos a minus b होगा ये plus tan of a plus b, it is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. When it is minus तो ये minus होगा ये plus होगा. Cot a plus b is the cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. आप cot a plus cot b भी बोल सकते हो, but when it is cot a minus b आपको मिलेगा cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a, not cot a minus cot b. तो यहाँ तक हम किए थे ना लास्ट टाइम. हाँ सर. Yes. Now using this formula हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते क्या हो रहा है. फाइंड आउट sin 15 डिग्री. sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? One under root 2. सही. 1 upon 1 upon under root 2. 1 by root 2. ये बोल रहे हो? Yes, sir. कैसे? ये कैसे मिला? sin 15 डिग्री. Sir, cos bracket 45 minus 30 and 30 cos. साइन 60 माइनस 45 करेंगे. cos कहाँ से मिला आपको? cos 45 minus 30 करोगे, ठीक है. फिर 1 by root 2 कहाँ से मिल रहा है? रूट 3 minus 1 upon 2 root 2 root 3 minus 1 upon minus 2 root 2. हाँ. Okay. Anything else? हाँ सर, root 3 minus 1 upon 2 root 2. और कुछ मिला क्या? 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? नॉन एंगल के साथ आप इसको 60 माइनस 45. yes 60 minus 45 करो, नहीं तो 45 minus 30 करो, as you like. So you can make this one as the sin 45 degree minus 30 degree. अब यूज करो sin a minus b का फॉर्मूला. यूज sin a minus b फॉर्मूला. ऐसा नहीं कि sin 45 minus sin 30 कर दो. ओके, यूज sin a minus b फॉर्मूला. क्या होता है? sin a मतलब 45 डिग्री, cos b
मतलब 30 डिग्री माइनस cos A again 45 डिग्री sin B sin 30 sin 45 वैल्यू 1 by root 1 by root 2. 1 by root 2 cos 30 3 by 2 root 3 by 2 minus cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by root 2. 1 by 2 1 by 2. तो एलसीएम हो गया 2 root 2 न्यूमरेटर हो जाएगा root 3 minus 1 upon 2 सर रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हो बट आपका इस हिसाब से याद रखना पड़ेगा क्योंकि बुक में जो दिया गया ए फॉर्मेट में दिया गया हाँ सर तो आप रेशनलाइज कर सकते हो रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो चलेगा ऐसा कुछ नहीं बट मीन वैल्यू इज दिस थिंग दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री 15 डिग्री को रेडियन में कितना लिखोगे 15 डिग्री रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे Pi by 12. pi by 12 ओके ये cos में कितना होगा sin 15 डिग्री cos का कौन सा वैल्यू cos 75. 5 pi by 12 75 डिग्री मतलब ये आपका कितना होगा 5 pi by 12 ठीक है तो दिस इज द फॉर्मूला sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री both remain same that value is the root 3 minus 1 upon 2 root 2 15 डिग्री in form of radian pi by 12 75 डिग्री 5 pi by 12 ठीक है अब बताओ cos 15 डिग्री कितना होगा formula sin 15 degree equal to root 3 minus 1 upon 2 root 2 which is the cos 75 degree यहाँ पे मैं 15 degree you can write pi by 12 75 degree ठीक है now find out cos 15 1 minus root 3 root upon 3 2 root plus 2. 1 upon 2 root 2 Root 3 plus root 3 plus 1 upon 2 root 2 similar formula ये साइन के जगह cos आ जाएगा तो here you can write also cos a minus b formula cos A. cos A plus cos A cos B minus cos Plus sin A sin B cos A cos B plus sin A cos sin a B. cos b plus sin a sin b cos 45 sin वही रहेगा cos 30 है ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होगा तो आंसर इज द व्हाट रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला मिस्टेक मत करो तो दिस इज व्हाट साइन में कितना होगा 75 तो tan 15 डिग्री कितना होगा root 3 plus 1 नहीं root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 इन दोनों का डिवीजन मतलब sin 15 अपॉन cos 15 तो रूट 2 कैंसिल होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा cos इसको आप रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा root 3 minus 1 root 3 minus 1 the Minus root
√3 minus 1. the whole square by 2. आगे स्क्वायर को ओपन करो. 1 minus √3. 1/2 plus √2. 1 upon 2 plus √3. 2 minus √3. 2 minus √2. 2 minus minus √3. कैसे रैशनलाइज कर रहे हो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करते हो? √3 minus 1. इसका ही नेगेटिव आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो न्यूमरेटर हो गया √3 minus 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर a plus b into a minus b will get 2. इसका स्क्वायर होता है 4 minus 2 √3 upon 2, कैंसिल होगा तो 2 minus √3. This is cot 75 degree. तो cot 15 कितना होगा? √3 plus 1 upon √3 minus 1. Next, equal to what? 2 plus √3. 2 plus √3. सिमिलर ना, ये क्या होगा? ये प्लस होगा, Minus. तो ये प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 रहेगा, ये प्लस होगा तो ये प्लस, तो 2 plus √3. So these are the values of sin 15, cos 15, tan 15 and cot 15. These two are comparable. Difference इसमें सिर्फ ये माइनस ये प्लस, tan cot भी comparable, ये माइनस ये प्लस. ठीक है, आप देखोगे अप टू 45 तक tan sin माइनस में ऐसे फॉर्मेट नेगेटिव में होता है, cos पॉजिटिव में होता है. आफ्टर 45 उल्टा हो जाता है. साइन देखो, साइन का वैल्यू प्लस में आया, cos ये cos का वैल्यू इसमें माइनस में रहा. अप टू 45 साइन का वैल्यू छोटा होता है, cos वैल्यू बड़ा होता है. आपका टेबल के हिसाब से आप चेक करो ना. हाँ, साइन आपका इंक्रीजिंग में होता है, cos आपका डिक्रीजिंग में होता है. Decreasing. ठीक है ना, 45 में दोनों इक्वल होते हैं. तो 0 to 45 cos बड़े होते हैं, 45 to 90 साइन बड़ा होता है. ठीक है, थोड़ा कंपेयर करके आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज tan a plus tan b? और इफ यू चेंज इन टर्म फॉर्म ऑफ साइन एंड cos, तो आपको क्या मिलेगा? साइन cos में चेंज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा? sin a cos b plus sin b cos a upon sin cos a cos b. क्या मिला? sin a plus b upon cos a cos b. यस, अब बताया ना, sin a cos b plus cos a sin b न्यूमरेटर में मिला. दैट इज फॉर्मूला ऑफ sin a plus b. तो यू गेट sin of a plus b upon cos a. हमारे Yes. जिसको नहीं समझा तो पूछो. ठीक है, तो tan a minus tan b क्या होगा? sin a minus b cos a cos b. sin a minus b upon cos a cos b. तो कभी आपको tan a plus tan b upon tan a minus tan b पूछा जाएगा, तो क्या आप लिख सकते हो? Sin a plus b upon sin a minus b. यस, sin a plus b upon sin a minus b. ये दोनों को डिवाइड कर दो, cos a cos b कैंसिल होगा.
Is that clear? उधर माइनस आएगा ना डिनोमिनेटर में नीचे लेफ्ट साइड. हाँ नहीं मैंने राइट like that. What is cot A, cot B minus 1 in form of sin cos? sin cos A plus B. सिर्फ cos A plus B. अपॉन साइन ए नहीं, साइन नहीं। बी. Cos A plus B upon sin A. cos a plus b upon sin a. cos A plus B upon sin A. और ये प्लस 1 होगा तो cos A minus B upon sin A sin. yes it will be cos A minus B upon sin A sin B. डिवाइड कर देंगे तो cos A plus B upon cos A minus B. cot A cot B minus 1 upon cot A cot B plus 1 हो जाएगा. बट ये उल्टा आ रहा है, माइनस के लिए प्लस हो रहा है, प्लस के लिए माइनस हो रहा है. ठीक है ना? तो इट इज cos A plus B upon cos A minus B. Right? What is tan pi by 4 plus theta? Minus 10. pi by 4 plus theta. क्या बोल रहे हो? माइनस टेन थीटा. क्यों? नहीं सर. ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? cos theta plus sin theta by root 2. cos theta plus sin theta by root 2. ये बेटा कहाँ से मिला? सॉरी सर tan है. One plus tan theta, Upon 1 minus tan theta. 1 minus tan theta. 1 plus Tan theta upon 1 minus tan theta. सबको मिला ये. हाँ सर. हाँ सर ये. सर आप एक्सप्लेन करो ना. किसने बोला? बताओ, मतलब किसका? सर मैंने. हाँ तो बताओ अब क्या किया? सर समझ में नहीं आया. सर वो फॉर्मूला में डाल दिया वैल्यूज. हाँ 45 डिग्री लिया. आपका ये कौन सा क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा 45 फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है? tan A plus tan B. a plus tan A plus B. tan A plus B डालो फॉर्मूला. tan A plus B का फॉर्मूला क्या है? 45. tan tan A
tan A plus plus tan tan B B upon 1 tan minus B. upon tan 1 minus tan A tan. 1 minus tan A into tan B. tan 45 का वैल्यू 1 1 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1, ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस tan थीटा। मैं समझ गया। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिख पाऊंगा? cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. यस, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस। तो ये याद रखो, यहां से तो आपको ये दिखता है, बट यहां से इधर दिखना डिफिकल्ट होता है। आपको कोई tan पाई बाय 4 प्लस थीटा पूछेगा तो आप तो निकाल सकते हो, बट कोई आपको ये पूछता है तो यहाँ पे आना डिफिकल्ट होता है। तो ये थोड़ा मतलब इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड कॉस बोथ दिस साइड, तो आपको ये मिलेगा, फिर 1 के जगह आप डालोगे tan पाई बाय 4, फिर कैसे मिलता है, तो इतना क्लिक नहीं करता है जल्दी। तो इसको थोड़ा याद रखो, कभी ये चीज आएगा, यू कैन यूज tan पाई बाय 4 प्लस। यू गॉट माय पॉइंट? Yes sir. क्वेश्चन ये होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट व्हेनेवर क्वेश्चन इज द दिस वन, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये इमीडिएट ये स्ट्राइक नहीं होता है। तो इसको आप याद रखोगे तो ये स्ट्राइक होता है, ये चीज और बहुत यूज होता है। तो इसी हिसाब से tan पाई बाय 4 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? 1 1 minus minus tan theta upon 1 plus tan theta. और यू कैन राइट cos थीटा Cos theta. माइनस sin थीटा अपॉन, Cos theta plus sin theta. ठीक है। ये जो सब मैं लिख रहा हूँ, इट इज लाइक दीज आर लाइक योर फार्मूला, तो थोड़ा याद रखो क्योंकि इसका एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन होता है। डन? Yes sir. Now tell me, what is sin A plus B plus sin A minus B? Two sin A cos B. Yes. 2 sin A cos। तो कभी 2 sin A cos B दिखाई देता है, ऐसा फॉर्मेट कहीं पे दिखाई देता है, तो यू कैन यूज लाइक दिस, sin A plus B plus sin A minus B plus। What is sin A plus B minus sin A minus B? 2 cos A sin 2 cos A sin B। ओनली फॉर्मूला और कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने यूज किया, sin A plus B यूज किया, sin A minus B यूज किया, फिर आपको मिलेगा। What is cos A plus B plus cos A minus B? 2 cos A cos B. 2 cos A cos B। What is cos A plus B minus cos A minus B? 2 sin A sin B. बस गया, एक बार चेक करो फॉर्मूला डाल के।
क्या मिला? -2 sin A sin B. Yes, -2 sin A sin B, not 2 sin A sin B. क्योंकि cos A plus B में क्या होता है? cos A cos B minus sin A sin B, और इसमें प्लस होता है, बट इससे पहले माइनस साइन देते हैं, तो cos A cos B कैंसिल होगा, -2 sin A sin B डबल होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। तो इमीडिएट ये सब मेंटली आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको याद रखना पड़ता है, मेंटली कर सकते हो चीज। What is sin A plus B into sin A minus B in terms of sin only? sin A plus B into sin A minus B, मुझे सिर्फ आंसर साइन में चाहिए। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, और किसी को कुछ मिला? sin square A minus sin square B. Sin square A sin square minus sin square B. sin square A minus sin square B, सबको मिला? हाँ सर। इसको नहीं Yes, मिला तो sir. बताओ। किसको नहीं मिला तो बताओ। मेरे वॉइस नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर आ रहे। इसने लिखा साइन रोनाल। स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी आ रहा है। हाँ बेटा रोनाल, क्या हुआ? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कुछ लिखे हो कि मतलब वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा है? हाँ, किसको नहीं मिला तो बताओ। दिस इज राइट आंसर। किसको नहीं मिला तो बताओ।
इट इज sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, और मैं cos में लिखना चाहता हूँ, तो फिर क्या लिखेंगे? मारू दे, कान वाटला आण नाही तर तसंच मारू दे टक्कर. cos में लिखना चाहता हूँ, ओनली cos, फिर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर बी cos माइनस square b cos minus स्क्वायर cos ए. square और cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए, बराबर, सॉरी cos स्क्वायर. तो sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, फॉर्मूला इज द sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए. cos होगा तो उल्टा होता है. सिमिलरली cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, इसमें ऐसा टाइप कुछ मिलेगा, बट मिक्स में मिलेगा. इट इज नॉट ओनली sin और ओनली cos, इट इज मिक्स ऑफ sin एंड cos, बट ऐसे फॉर्मेट मिलेगा. सर कॉस में चाहिए पहला वाला. नहीं, cos एंड sin पूरे cos में नहीं होता है, पूरे cos में नहीं होता है, पूरे sin में नहीं होता है. cos के साथ sin मिक्स होता है, बट ऐसा फॉर्मेट में होता है. cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी. दिस इज नॉट दिस इन दिस वे. तो एक में cos होगा, एक में sin होगा, ठीक है, ऐसा लाइक a माइनस बी फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में रहेगा. कौन से फॉर्मेट में होगा, हम्म? कौन से फॉर्मेट में होगा आंसर? मिक्स ऑफ sin एंड cos, बट लाइक a माइनस बी, ऐसा फॉर्मेट में रहेगा. cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर. वो तो ठीक है, बट इससे सिंगल cos सिंगल sin ऐसा होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा. इट इज लाइक a माइनस बी फॉर्मेट. ये एक ही टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, इसमें कोई आइदर ये cos ये sin ये cos ऐसा होगा. हाँ सर वैसे ही आया. तो आपको तो प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहे ना, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी ऐसा रहा. और ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्रूव दैट दिस इज cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी. cos a plus b into cos a minus b. Prove that cos square a minus sin square b. cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 1. ये प्रूव करो. Prove that cos square a minus sin square b. सर
कॉस स्क्वायर बी होएगा, कॉस स्क्वायर बी की जगह पे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी डाल देंगे, फिर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट। स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसा मिलेगा फिर सेकंड पार्ट में। हाँ, और है ना वो साइन स्क्वायर बी में साइन स्क्वायर ए को अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो उससे आएगा। हाँ, आपको ये मिला कि नहीं मिला वो बता दो। हाँ मिल गया। किसको नहीं मिला तो बताओ। हाँ सर मिल गया। हाँ, जिसको नहीं मिला भी फ्रैंकली बताओ, डोंट सी अदर, मतलब उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिला ऐसा मत सोचो। यू आर कमिंग हियर टू लर्न। तो जिसको मिला ठीक है, जिसको नहीं मिला बताओ। नहीं मिला सर। हाँ ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है बताओ, ऐसा डोंट सी अदर। cos a प्लस बी कितना होता है फॉर्मूला? cos a cos b माइनस cos a cos b minus sin a sin sin b into cos a minus b. It is cos a cos b plus sin a sin b, है ना? So it is like a minus b into a plus b. So a plus b into a minus b. a plus b into a minus b कितना होता है? cos Square square minus a square cos square b square minus minus sin square. square a sin square b। तो cos a cos b का स्क्वायर मतलब cos square a cos square b माइनस sin square a sin square b। बट मुझे चाहिए cos square a माइनस sin square b। तो cos square a चाहिए तो ये cos square a रखता हूँ, cos square b को चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस sin square b, ठीक है? माइनस ये sin square a को चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस cos square a into sin square b। आपका जैसे रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे चाहिए cos में a sin में b, तो जहाँ पे cos b था मैं उसको sin में चेंज कर दिया, जहाँ पे sin a था मैंने उसको cos a कर दिया, ठीक है? सर फर्स्ट भी समझ में नहीं आया। क्या फर्स्ट भी समझ में नहीं आया कौन सा cos b? ये सर। फर्स्ट क्वेश्चन। ये हाँ सर। ठीक है, अभी इसके हिसाब से आप कर सकते हो ना, ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। तो फिर वो टाइम पर क्यों बताया नहीं? मैं 2-3 बार पूछा, किसको नहीं समझा तो बताओ। सर एक बार फिर से समझाए ना। कौन सा? ये हाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है आप बताइए? cos a प्लस b का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला ऑलरेडी हम सर फॉर्मूला वो क्लियर दिख नहीं रहा। हाँ? नहीं दिखाई दे रहा है? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तो हम पेन टैब में भी कर सकते हैं। दिक्कत हो रहा है क्या बोर्ड देखने के लिए? बताओ। कितनों को प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड देखने के लिए? मैं जब
लैपटॉप के फोकस सामने हिल जा रहा है। नहीं नहीं, मैं जब आप इसके सामने आता हूँ ना थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाता है, बट मैं दूर में रहता हूँ तो मेरे हिसाब से देखना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहे दिख तो रहा है क्या? दिख रहा है। नहीं प्रॉब्लम हो रहा तो हम दूसरा ये करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेटिव है मेरे पास। नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। नहीं भी दिखाई दे रहे तो आपको सुनाई तो दे रहा है ना, उसी हिसाब से आप लिखो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। आप ये दोनों टर्म को देखोगे, इट इज लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट मुझे प्रूव करना था कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो इधर मुझे मिला cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। तो जहां पे cos b था उसको मैंने sin में कन्वर्ट किया, cos स्क्वायर b को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर b, और जहां पे sin स्क्वायर a था उसको cos में मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे cos में a चाहिए, sin में b चाहिए। तो जहां पे sin a रहेगा उसको cos में मैंने कन्वर्ट किया, जहां पे cos b रहा उसको sin में कन्वर्ट किया। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट cos स्क्वायर a। अगर कोई एक साइड का भी कन्वर्ट करेंगे तो चलेगा। हाँ तो कैसे भी आप कर सकते हो, वो भी एक साइड करोगे मतलब इसको पूरा। मतलब सर जो साइन स्क्वायर है ना उसको भी बस कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। हाँ बट इसको कन्वर्ट करोगे तो नहीं होगा ना शायद। सर मैंने उसको कन्वर्ट किया था, माइनस के बाद जो टर्म है ना उसको। अच्छा फिर और एक बार आपको आपका स्टेप एक बढ़ जाएगा। हाँ सर, होगा मतलब हाँ लास्ट क्यों, में आएगा। हाँ एक वन वन की जगह मतलब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको इधर दोनों को साइन में कर दोगे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b, है ना। फिर आपको 1 माइनस कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर a साइन मतलब यूज करना पड़ेगा, दैट इज cos स्क्वायर a। एक हाँ स्टेप सर। बढ़, हाँ एक स्टेप ज्यादा होगा होगा ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे सीधा इधर से मिल जाएगा cos स्क्वायर a, ये होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b कैंसिल हो गया, बचा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या होगा, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे cos स्क्वायर a लिखना पड़ेगा, हाँ चलेगा। सर। हाँ और क्या लिख सकता हूँ इसको, जैसे और में लिखे, इसको और में क्या लिख सकते हैं, cos को sin करो, sin को साइन cos स्क्वायर है करो, माइनस कॉस स्क्वायर। सॉरी cos square माइनस b कॉस। minus sin square। यस इट इज cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। तो इसको हाउ टू रिमेम्बर, फर्स्ट वन cos सेकंड वन sin, ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट वन cos सेकंड वन sin। तो इट मे बी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। इसमें कैसे दोनों sin नहीं तो दोनों cos, ये समझा ना। इसको कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसको कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा। डन। कि नहीं, हाँ सर।
If a plus b is equal to pi by 4, then 1 plus tan a into 1 plus tan b कितना होगा? सर 2 है. Okay. 2. सर 2 आई है. हम्म. टू और क्या बोले? 2 7 7 और कुछ? सर 2 मिला. ओके. Sir, 2. Yeah. 2 is the right answer, not 7. आपको दिया गया कि a plus b is the pi by 4 and question in form of tan. तो क्या करोगे? Use tan both the sides. तो tan of a plus b आपको मिलेगा tan pi by 4. tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b
upon 1 minus tan A into tan B, tan pi by 4. 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, implies tan A plus tan B is equal to 1 minus tan A tan B, right? और tan A plus tan B, इसको इधर ले आओ, plus tan A tan B is equal to 1. चाहो तो आप both side 1 ऐड कर सकते हो, so that ये आपको कभी भी आप देखो 1 plus x plus y plus xy, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलता है? 1 plus x 1 plus y. 1 plus x into 1 plus y मिलता है, ठीक है? तो 1 plus x plus y plus xy, तो ये आपको 1 plus tan A into 1 plus tan B दे देगा, which is 2. हाँ सर समझे. हाँ, नहीं जिसको नहीं समझा ये चीज आप इधर रख सकते हो. मतलब मुझे क्या मिला था? tan A plus tan B plus tan A tan B, ये आपको 1 मिला था, तो कीप मेक इट 1. अब इसको आप मल्टीप्लाई करो. नाउ कम टू दिस वन. मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 1 plus tan A plus tan B plus tan A tan B, और इसके जगह आप 1 डाल सकते हो यूजिंग दैट रिजल्ट. तो आंसर इज द 2. आप ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, बट इसके लिए सर हमको tan A plus tan B की वैल्यू आ जाएगी तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी हो जाएगा. tan A सर वो tan A plus tan B की जो वैल्यू है ना, उसको डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी हो जाएगा. तो मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया ना, इधर सब्स्टिट्यूट किया, मतलब ये हाँ 1 सर मिला. उसको इधर सब्स्टिट्यूट किया 1 minus tan A tan B. 1 minus tan A tan B, हाँ चलेगा, वो भी चलता. मैं एक्चुअली क्या चाह रहा था, इसको डायरेक्टली निकालने के लिए विदाउट हेल्पिंग ऑफ दिस थिंग, मतलब ये, तो इसलिए मैंने +1 किया, सो दैट ये लेकिन मुझे ये रिजल्ट पता था. कभी भी मुझे 1 plus x plus y plus xy दिखता है तो आई कैन राइट 1 plus x into 1 plus y. ओके सर. तो ये रिजल्ट आपको पता है तो फिर ये स्ट्राइक करेगा. क्यों मुझे 1 ऐड करना पड़ रहा है? अदरवाइज आप जैसे कर रहे हो सिंपल मेथड में ऐसे करो, इसका 1 रखो फिर डाल दो, मतलब इसका वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करो बस. और कभी आपको 1 minus x minus y plus xy दिखता है, दिस इज 1 minus x into 1 minus y. ये सब छोटी छोटी चीज याद रखो. सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हो? कौन सा? यही से 1 plus x plus y plus xy is equal फैक्टराइज to. करना है. फैक्टराइज करना है, इसमें क्या है? अच्छा ओके सर. यहाँ से y कॉमन ले लो, 1 plus x पूरा कॉमन चला गया, बचा 1 plus y. समझा कि नहीं? हाँ सर समझा. जिसको नहीं समझा बताओ. आपके पास a plus b equal to pi by 4 था, क्वेश्चन आपका tan में था, इसलिए मैंने tan यूज किया और कुछ नहीं. डन. क्या करो? यस. सपोज ये क्वेश्चन कोर्ट में पूछा होता एंड आपका आंसर 2 होता, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होता ये बता. कंडीशन वही है, a plus b equal to pi by 4.
you have to formulate the question ऐसा फॉर्मेट में, जैसे वो tan में था ऐसा कट में होगा, आपका आंसर 2 होगा। तो इधर क्या क्या मिलेगा, दो फैक्टर्स कैसे रहेगा? cot A minus 1 cot B minus 1 या नहीं cot A plus 1 cot B plus 1 चेक करो। और एक बार चेक करो। सर A plus B equal to 4 है। ऐसे सॉरी नॉट 4, 5/4। वन माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी। राइट, सर 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी। राइट। कॉट में होता है तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी होता है। टैन में होता है तो 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन ए। चाहो तो आप ये रिजल्ट्स याद रख सकते हो। ये आप देखो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करो। Anything else? अब मुझे बताओ, नाउ कम टू मल्टीपल and sub multiple of angles. Multiple and sub multiple of angles. ये क्या होता है? Suppose one angle is the theta. इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रखेंगे, 2 थीटा, 3 थीटा, 100 थीटा, 29 थीटा। These are called multiples. नहीं थीटा गिवन, आप थीटा बाय 2 निकाल रहे हो, थीटा बाय 3 निकाल रहे हो, थीटा बाय 7 निकाल रहे हो, थीटा बाय 10 निकाल रहे हो। These are called sub multiples. Is that clear? What is multiple of angles and sub multiple of angles? सर सब मल्टीपल फ्रैक्शन में होते हैं। हाँ, आप 2/2 थीटा बाय भी 3 कर सकते हो। थीटा से आप 2 थीटा बाय 3 भी कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट, ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये उसका मिक्स फॉर्मेट रहा, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 मतलब थीटा बाय 3 क्या होगा, सब मल्टीपल या मल्टीपल?
दोनों होता है, ये मिक्स में होता है। सपोज 2 थीटा गिवन, देन 2 थीटा के लिए ये सब मल्टीपल होगा। सपोज थीटा गिवन, देन मिक्स में होगा, ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, दोनों फॉर्मेट यूज हो रहा है। यस सर। ठीक है, समझा ना? अब मुझे निकालना है साइन 2 थीटा। सर 1 मिनट वापस रिपीट कर सकते, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, एंगल लेट अस टेक थीटा। थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, 100 थीटा, 99 थीटा, 72 theta. These are called multiplication of theta, multiples. सब मल्टीपल मतलब डिवीजन फॉर्मेट, थीटा बाय 2, थीटा बाय 3, थीटा बाय 9, थीटा बाय 51, 25. These are called सब मल्टीपल ऑफ। किसने बोला कि 2 थीटा बाय 3, तो 2 थीटा के हिसाब से सब मल्टीप्लिकेशन, थीटा के हिसाब से मिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, सब मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होगा। ओके सर। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टू साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे? सर एक बार हेमंत सर ने बताया था। अब निकालो निकालो। Now you can find out. मिला? सर हाँ मिल गया। सर साइन 2 थीटा को साइन थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, या फिर वो फॉर्मूला डाल देंगे। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 0। 2 sin theta cos थीटा। theta. 2 sin theta into cos theta. 0 कैसे होगा बेटा? नहीं सर 2 थीटा समझा। को हम लिखेंगे थीटा Sin प्लस theta. थीटा। ठीक है, अब तो मुझे साइन ए प्लस भी पता है। अब ए की जगह थीटा हुआ, बी की जगह भी थीटा हुआ, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा डबल हो गया। तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला इज द 2 साइन थीटा इसको मैं पूरे टैन में करना चाहता हूं। दिस इज वन फॉर्मूला। इसका और एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक बार प्रूव करो।
मिला? हाँ सर मिला। मिल गया? LHS to RHS की RHS to LHS? LHS to RHS। बाकी सबको मिला? मिला? नहीं सर। sin थीटा क्या मिल मिल चुका है? गया सर। sin 2 थीटा क्या मिल चुका है? 2 sin थीटा cos थीटा मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे पता है। अब ये निकालना है, तो मुझे सर tan डिवाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय cos उससे थीटा आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दो cos थीटा, मल्टीप्लाई भी करो cos थीटा। मल्टीप्लाई Right? ये मेरे पास था 2 sin थीटा cos थीटा मेरे पास था, मैंने cos थीटा एक डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, बराबर ना? हाँ हाँ सर। which is 2 sin by cos, tan cos into cos, cos square Cos square. theta cos square को क्या लिख सकते हैं? 1 by 1 sec theta 1 by sec स्क्वायर थीटा 1 by sec square theta, फिर sec square theta को क्या कर plus देंगे? tan square theta 1 plus tan square आ theta। गया है ना? तो देयर आर टू फार्मूला ऑफ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, एक होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। इसको देखो सर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन से मल्टीप्लाई किया तो और एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? कॉट में हाँ होगा, कॉट में होगा तो आपको मिलेगा 2 cot थीटा अपॉन 1 plus cot square थीटा। हाँ सर। इसमें देखो मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन मतलब डाल रहा हूँ। sin 2 थीटा जब 2 sin थीटा cos थीटा हुआ, sin 4 थीटा कितना होगा? वही फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में बताओ। If sin 2 थीटा is the 2 sin थीटा cos थीटा, sin 4 थीटा कितना होगा? क्या हुआ? अब 2 थीटा क्या हो गया? 2 theta cos 2 theta। Yes. When it is 2 थीटा, ये राइट साइड में आपको थीटा मिल रहा है, मतलब आधा मिल रहा है। तो when it is 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा? 2 sin 2 थीटा बराबर। हाँ सर। When 2 theta changes 4, तो theta changes to 2 theta. सिंपल। तो ये एंगल का मल्टीप्लिकेशन होगा। sin 50 थीटा क्या लिख सकते हो? 2 sin 3 sin 25 theta cos 25 theta।
yes 2 sin 25 theta whatever this angle इसका आधा होगा cos 25 sin 11 theta को क्या लिखोगे 2 sin 5.5 5.5 theta 2 sin 11 by 2 11 theta by 2 ठीक है cos 11 theta 0.5 मत करो बराबर हाँ सर sin theta क्या लिखोगे 2 sin 1/2 theta cos 1/2 theta 2 sin theta by 2 cos sin theta by 8 को क्या लिखोगे 2 sin theta by 16 cos theta by 16 समझ में आया हाँ सर तो ये इधर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ थीटा हुआ इसमें फॉर्मूला रिमेन सेम आप कोई भी फॉर्मेट पर चेंज कर सकते हैं बट ये याद रखो व्हेन व्हाटएवर दिस एंगल इसका आधा होना चाहिए बस sin 4 थीटा का जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला और भी फॉर्मूला होता है ठीक है बट ये फॉर्मेट में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा इज दैट क्लियर yes sir yes इसको नहीं समझा तो बताओ लाइक आप इसको भी लिख सकते हो tan फॉर्मेट में लिख सकते हो इसको मैं tan में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे sin 4 थीटा 2 tan 2 theta upon 1 plus tan square 2 theta अब 2 थीटा की जगह थीटा हो रहा था तो 4 थीटा 2 थीटा हो जाएगा 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 theta ऐसे ही करो ठीक है अब मुझे बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा What is the formula of cos 2 theta? cos square theta sin square theta cos square theta minus sin square सर माइनस 1 रहेगा 1 आ जाएगा क्या बात है मतलब मैं थीटा की जगह कुछ भी डालूंगा मुझे 1 मिलेगा cos square minus sin square क्या मिला cos square theta minus sin square theta cos square theta माइनस sin square theta प्लस नहीं प्लस होगा तो 1 होता है मतलब मैं आप कोई 1 बोलेगा तो 10 डिग्री डालूंगा तो cos 20 डिग्री भी 1 होता है क्या पूरे cos में कितना होगा ओनली cos minus 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 ओनली साइन में क्या होगा 1 minus 2 1 sin minus square 2 sin theta 1 minus 2 sin square theta ओनली tan में क्या होगा लाइक दिस इसमें जैसे ओनली tan की है इसमें से ओनली tan करो क्या होगा 1 minus sin square 1 minus tan square theta 1 minus one minus tan 1 minus tan square theta only
1 minus tan square theta. हाँ सर। ऐसे कैसे हो? सर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो खाली tan में कैसे है? सेपरेटली डिवाइड करेंगे ना। करो। बस मुझे आंसर पूरा tan में आना चाहिए। वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Right. Is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये कैसे मिला? वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अपन कॉस स्क्वायर थीटा द होल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, फिर सेक स्क्वायर, फिर उससे आएगा कॉस, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा तो नीचे चला जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस, नहीं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेंथी कर दिए। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला मेरे पास है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना? cos 2 थीटा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक cos स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है? cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर अपन tan स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, कितना होगा? 1 by sec 1 प्लस tan। 1 plus tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया। हाँ सर। So there are 4 formula of cos 2 theta, sin का 2, cos का 4। ओके, यहां से मैं इसका सब फॉर्मूला निकाल रहा हूं। यहां से आपको क्या मिलेगा? जब cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा? वन प्लस cos 2 थीटा क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देता हूँ ना बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 cos 2 थीटा हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा? 2 cos sin 2 स्क्वायर थीटा थीटा। 2 sin स्क्वायर। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बिकेम tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है rather than this। कभी भी आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखाई दिया, you can write 2 cos square theta, suppose 1 plus cos 40 डिग्री, ठीक है ना? तो आप इसको 2 थीटा मान सकते हो, you can write 2 cos square 20 डिग्री, बराबर। कभी आपको 1 माइनस cos 40 मतलब 70 डिग्री सपोज देखा, तो क्या लिख सकते हो? 2 sin स्क्वायर 35 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री को मैं 2 थीटा मान रहा हूं, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा हो जाएगा 35 डिग्री। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको 2 थीटा दिखेगा, आपको लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, लेट अस टेक दिस इज द 2 थीटा, उसी हिसाब से आपको थीटा लेना। ओके, तो
all this formula you have to remember. देखो cos 2 theta in terms of, मेरा क्वेश्चन कैसे रहता है, cos 2 theta in terms of cos, so this is the answer, 2 cos square theta minus 1. Cos 2 theta in terms of sin, 1 minus 2 tan sin square theta. Cos 2 theta in terms of tan, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. But वही क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा, tan square theta in terms of cos 2 theta. इसमें मैं बोल रहा था cos 2 theta in terms of tan, but here tan square theta in terms of cos 2 theta. तो आपका आंसर होगा 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos theta. देखो दोनों सिमिलर फॉर्मेट में जा रहा है, ये 1 minus tan square upon 1 plus tan square, ये 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2. sin square theta in terms of cos 2 theta, आंसर क्या होगा? sin 1 square minus theta, cos 2 theta. sin square theta in terms of cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta by 2. Yes. sin square theta in terms of cos 2 theta होगा 1 minus cos 2 theta by 2. Like that. Cos square theta in terms of cos 2 theta, 1 plus cos 2 1 theta. plus cos 2 theta by 2. Right? तो ये this side formula more important than this side, क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है. अब tan 2 theta निकालो in terms of tan. tan theta upon 1 minus tan square theta. मिला सबको? Yes sir, yes sir. Similarly, cot 2 theta in terms of cot. Cot square theta minus 1 upon 2 cot theta. Very good. ये सब आपका फॉर्मूला. सर ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं. सब याद नहीं करोगे तो आपको क्लिक नहीं होता है. हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन. आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता है. हाउ टू स्टार्ट, आपके दिमाग में फॉर्मूला होता है तो फिर क्लिक होता है कि हाँ ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ. फिगो का ये डिफिकल्टीज है. बाय सीइंग द क्वेश्चन आप कैसे प्रोसीड करोगे पता नहीं चलता है इतना. So you need to remember each and every formula. So that आपको स्ट्राइक करता है कि हाँ ये फॉर्मूला मैं ये यूज कर सकता हूँ. Done? Yes sir. Yeah. अब मुझे बताओ 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta कितना होगा? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपको कितना देगा? Tan theta. Tan theta. 2 sin theta. और
2 sin theta. 2 sin थीटा Yes. tan theta. ऐसे 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin square. 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा कितना होता है? 2 2 sin sin theta cos theta. 2 sin थीटा cos थीटा तो एक 2 कैंसल एक sin कैंसल बचा क्या? sin theta cos theta tan theta. cos तो tan थीटा होगा 2 sin थीटा कहाँ से मिला? तो साइन 2 थीटा नहीं देखा सर, वो हमको लगा साइन थीटा है। मैं तो बोल रहा हूँ sin 2 थीटा ठीक है तो दिस बिकम tan थीटा। अच्छा sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आएगा? sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा Cot theta? नहीं. Tan theta. Cos theta. tan theta. मिला? Tan theta. Yes, it is tan theta. Sin 2 theta क्या होगा? Sin 2 theta is the 2 sin theta cos theta and 1 plus cos 2 theta. कितना होता है? 2 cos square. 2 cos square theta. तो 2 कैंसिल एक cos कैंसिल होगा फिर sin by cos. ठीक है? This one also more useful formula. कभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो आपके पास दो ऑप्शन ये यूज कर सकते हो ये भी यूज कर सकते हो किसके साथ जाओगे सपोज आपके पास दोनों मतलब दोनों आप यूज कर सकते हो tan थीटा की जगह आप ये यूज कर सकते हो ये भी कर सकते हो तो कभी यूज करना पड़ा तो किसके साथ जाओगे Sin 2 theta ज्यादा upon easy 1 plus पड़ेगा cos वो। 2 theta. Cos. तो sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। इसके साथ जाओगे हाँ सर। कि उसके साथ हाँ sir. तो सेकंड ये मैं 1 मान रहा हूँ ये 2 मान रहा हूँ किसके साथ जाओगे 1 के साथ कि 2 के साथ 2 1. 2. Go for 1 1 क्यों डिनोमिनेटर आपका जितना कंपैक्ट होता है आपका सिंप्लीफिकेशन इजी होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है उधर डिनोमिनेटर छोटा है आप सीधा सीधा ऐसे डिवाइड कर सकते हो बट इसको ऐसे डिवाइड कर नहीं पाओगे ठीक है तो डिनोमिनेटर जितना कंपैक्ट होता है आपका सिंप्लीफिकेशन उतना इजी होता है डिनोमिनेटर को बढ़ाना नहीं चाहिए न्यूमरेटर स्ट्रेच होगा तो चलेगा ठीक है तो कभी दोनों आपके पास ऑप्शन होता है कि ये यूज कर सकते हो नहीं तो ये भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो गो फॉर फर्स्ट वन रादर देन सेकंड अब बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इसी रेस्पेक्ट में ये रेस्पेक्ट में cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा Sin 2 theta upon 1 minus cos 2 by 1 minus cos 2 theta. इसका रेसिप्रोकल तो sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा और Reciprocal. 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो कभी दोनों के साथ मतलब कोई एक के साथ जाना पड़ेगा तो किसके साथ जाओगे सेकंड Second. सेकंड के साथ जाओगे ठीक है अब बताओ cot थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा अपॉन 2 sin upon 2 थीटा sin 2 theta. 2 अपॉन sin
sin 2 theta. sin 2 theta. वेरी गुड। ये समझा सबको? हाँ सर। cot थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? माइनस cos 2 theta upon sin 2 theta. जैसे आप प्रीवियस मान बताए ना, उसका ऐसे ही बता। टू tan 2 2 tan 2 थीटा। हाँ सर। और एक बार चेक करो। माइनस cot 2 theta. ना, हाँ सर वही है। क्या मिला? 2 tan 2 theta 2 cot 2 theta 2 sorry. cot 2 theta. 2 cot 2 बोलो। Cot 2 theta. cot 2 थीटा 2 cot 2 theta. माइनस 2 cot 2 theta. माइनस कहाँ से आ रहा है? माइनस कहाँ से आ रहा है? साइन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? cot is the cos theta upon sin theta. tan is the sin theta upon cos theta. Cos square theta minus sin square theta upon cos theta sin theta. cos theta sin theta। तो इसको फॉर्मूला लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, है ना? ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है। cos square theta minus sin square theta क्या होता है? cos 2 theta cos 2 theta। तो 2 cos 2 theta 2 sin theta cos theta sin 2 theta कितना मिला? 2 cot 2 cot 2 theta। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 cosec 2 theta also you can write। समझा ये कि नहीं? Yes, sir. Sir, cos theta plus tan. तो वो लास्ट वाला स्टेप नहीं, हाँ? क्या लास्ट हुआ? वाला स्टेप 2 मल्टीप्लाई करने। ये आपको मिला? हाँ सर। तो मेरा डिनोमिनेटर में मिला sin थीटा cos थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला में है sin थीटा cos थीटा? sin थीटा इंटू cos थीटा कौन से फॉर्मूले में है? ये टर्म कौन से फॉर्मूले में आता है? sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 theta sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा sin cos theta थीटा। cos theta। इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। सो दैट इसको मैं एक फॉर्मूले में ला सकता हूँ। आपको हमेशा फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है। हाँ सर। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 theta दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। हाँ हाँ cos सर। थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin theta sin 2 theta sin 2 sin 2 थीटा और एक 2 बचा था 2। अब cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। tan 2 theta हाँ? नहीं cot 2 theta
cot 2 थीटा तो 2 cot बराबर। हाँ सर। अब मुझे बताओ tan 22.5 डिग्री कितना होगा। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। सर 2 tan 45 थीटा by 4 upon 1 minus tan 45। न्यूमेरिकल वैल्यू 45/4 कहाँ से मिला। सर हाफ करेंगे। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढना है जैसे sin रूट 50 टू डिग्री माइनस होगा। वन हाँ? रूट टू माइनस वन ओके और कुछ। मिला। और टू माइनस 1 कुछ मिला क्या आपको। क्या मिला √2 - 1। हाँ ओके 22 हाँ किसके साथ हम रिलेट करेंगे। नो नागल। सर ऊपर फॉर्मूला है ना cot थीटा प्लस tan थीटा और cot थीटा माइनस tan थीटा तो 1 माइनस 2 तो उससे आएगा 2 tan थीटा और 2 cosec 2 थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा 2 कट हो जाएगा cosec 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा cosec थीटा मतलब cosec 45 माइनस cot 45 √2 माइनस 1। ओके ठीक है बट आप दो फॉर्मूले की यूज कर रहे हो।
और एक फॉर्मूला भी आप यूज करके कर सकते हो. इफ आई कंसिडर थीटा 22.5 डिग्री, तो ये एंगल को मैं कौन सा नॉन एंगल के साथ रिलेट करा सकता हूँ? 30 कितना? 30 डिग्री 50 45 30 30 डिग्री 30 डिग्री कैसे रिलेट करेंगे? 45 45 45 45 45. तो 45 कितना होगा? 2 थीटा. 45 डिग्री को मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, एंड मुझे yes 45 डिग्री पता है. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन गया tan थीटा. अब मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा क्या था? tan थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा में क्या फॉर्मूला था? अभी अभी डिस्कस किए थे. tan theta plus tan tan theta upon 1 tan थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा में क्या 1 था? minus cos 2 theta upon sin 2 theta. Yes, 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. Now use this formula. Tan theta is 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. तो tan 22.5 कितना हो जाएगा? 1 minus cos 45 upon sin 45, which is 1 minus cos 45 with the 1 by root 2 upon 1 by root 2, which is root 2 minus 1 upon root 2 whole divided by 1 by root 2. कैंसिल हो जाएगा, then root 2 minus 1. सर वो डिनोमिनेटर Yes, में sir. sin 2 थीटा है ना. हाँ, मैंने 2 थीटा यूज किया इधर. उधर एक ही फॉर्मूला यूज करके निकाला. आप जो किए थे वो भी राइट था, बट आप दो फॉर्मूला की यूज किए. बराबर. हाँ सर yes शॉर्ट में कितना लिखोगे? 67.5 67.5. ठीक है, आप याद करो, मैंने बताया था ये सब आप एंगल निकालने वाले हैं. 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67, 18, हाँ वो सब निकालने वाले. अच्छा, cos 67.5 पाई बाय 8, सॉरी 22.5 को रेडियन में क्या लिखोगे? Pi by 8. 22.5 इधर पाई बाय 8, 67.5 3 pi by 8. पाई बाय 8. अब बताओ cot 22.5 कितना होगा? Root 2 plus 1. root 2 plus 1. This is tan 67.5. अब बताओ sin 22.5 कितना होगा? और मैं प्रूव करने के लिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट देगा. अब प्रूव दैट sin 22.5 is the 1/2 under root 2 minus root 2. ये प्रूव करो. sin 22.5 डिग्री the 1/2 under root 2 minus root 2.
डन। नहीं मिला। क्या हुआ? नहीं मिला। कोई रिलेशन ढूंढेंगे ना। इफ यू कंसीडर थीटा 22.5, तो मैं किसके साथ रिलेट करा पाऊंगा नॉन एंगल। If you consider theta as 22.5, then 2 theta is the 45 degree. अब ढूंढो sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा में क्या था। sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा क्या था। हम्म 1 minus 2 sin square theta is equal to cos 2 theta. तो sin स्क्वायर थीटा क्या था। उधर से sin स्क्वायर थीटा निकालो ना। बताया था sin स्क्वायर थीटा कितना होगा। मिल गया 1 minus cos 2a upon 2. sin स्क्वायर थीटा इज 1 minus cos 2 थीटा upon 2। तो sin स्क्वायर 22.5, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट में आंसर है तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर यूज होगा। तो sin स्क्वायर 22.5 became 1 minus cos 45 degree by 2। ठीक है, which is 1 minus cos 45 with 1 by root 2 by 2, that is root 2 minus 1 by 2 root 2। एक रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा। रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4। दिस इज द साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो साइन 22.5 डिग्री कितना होगा। साइन स्क्वायर 22.5 इज द 2 माइनस रूट 2 बाई 4। तो साइन 22.5 कितना होगा। प्लस माइनस 2 माइनस रूट 2 का रूट ओवर बाई 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट होगा ना, बट प्लस माइनस में आएगा। हाँ सर। प्लस रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, माइनस रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव होगा। 22.5 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट 22.5 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए आपका प्लस वैल्यू के साथ जाएगा, जाना पड़ेगा, माइनस के साथ नहीं।
तो ये आपको मिल दिस इज कॉस में कितना होगा 67.5। अब मुझे बताओ cos 22.5 कितना होगा cos 22.5 कितना होगा तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा ये आधा बच्चे तो निकल गए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था सर हम cos 90 माइनस 67.5 कर सकते हैं। बट आपको 67.5 सर तो पता नहीं cos 2a plus sin square theta जैसे sin स्क्वायर थीटा इज द 1 minus cos 2 थीटा by 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था टू cos 2 cos square theta minus 1 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 इज द cos 2 थीटा हाँ तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 plus cos 2 थीटा by 2 मैंने साइड में लिखा है मैंने बताया था ना वो लेफ्ट से राइट फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस सर cos स्क्वायर थीटा इज 1 plus cos 2 थीटा by 2 मतलब वही फॉर्मूला में बट ये माइनस की जगह प्लस होगा इधर माइनस इधर प्लस तो इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर में क्या होगा इधर प्लस आ जाएगा बाकी सब बराबर है तो cos 22.5 होगा 1/2 under root 2 plus 2 which is sin 67.5 तो आज हम 15 डिग्री किए 22.5 डिग्री भी हो गया ठीक है तो आज के लिए इतना लास्ट टाइम आप लोग सब ब्रेक लिए थे इस बार डबल बराबर ना क्या सर